Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. He had to he had come to the Congress session to complain about the injustice of the landlord system in Bihar, and somebody had probably said, "Speak to Gandhi." एक पुराने प्रबंध के अनुसार चंपारण के किसान बटाई पर खेती करते थे। राजकुमार शुक्ला उन्हीं में से एक था। वह अनपढ़ था लेकिन दृढ़ निश्चयी था। वह कांग्रेस सम्मेलन में बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के विरुद्ध शिकायत करने आया था, और शायद किसी ने उससे कहा था, गांधी से बात करो। Gandhi told Shukla he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India. गांधी जी ने शुक्ला को बताया कि कानपुर में उनका पूर्व निश्चित कार्यक्रम है और भारत के अन्य भागों में जाने का भी उन्होंने वायदा कर रखा है। शुक्ला accompanied him everywhere. Shukla accompanied him everywhere. Then Gandhi returned to his ashram near Ahmedabad. Shukla followed him to the ashram for weeks. He never left Gandhi's side. Fix a date, he begged. अब गांधी जी ने बताया शुक्ला जी को कि कानपुर में उनका पूर्व निश्चित कार्यक्रम और भारत के अन्य भागों में जाने का भी उन्होंने वादा कर रखा है। शुक्ला जी उनके साथ हर स्थान पर गए। फिर गांधी जी अहमदाबाद के निकट अपने आश्रम में लौट आए। शुक्ला जी उनके पीछे पीछे आश्रम तक आए। हफ्तों तक उसने गांधी जी का साथ न छोड़ा। मिलने की तारीख पक्की कर लो, उसने प्रार्थना की। Impressed by the sharecroppers' tenacity and story, Gandhi said, "I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there." उस बटाई पर काम करने वाले किसान के धैर्य और इरादे से प्रभावित होकर गांधी जी ने कहा, उस तारीख को मुझे कलकत्ता में जाना है। वहां आकर मुझसे मिलो और मुझे वहां से ले जाना। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta when Gandhi arrived. He waited till Gandhi was free. Then the two of them boarded a train for the city of Patna in Bihar. There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became president of the Congress Party and of India. Rajendra Prasad was out of town, but the servants knew Shukla as a poor yeoman who pestered their master to help the indigo sharecroppers, so they let him stay on the grounds with his companion Gandhi, whom they took to be another peasant. But Gandhi was not permitted to draw water from the well, lest some drop from his bucket pollute the entire source. How did they know that he was not an untouchable? महीने बीत गए। जब गांधी जी कलकत्ता पहुंचे, शुक्ला जी अपने नितंबों पर निश्चित स्थान पर बैठे हुए थे। उन्होंने गांधी जी के कार्य मुक्त होने
तक वेट किया। फिर उन दोनों ने बिहार में पटना शहर के लिए ट्रेन पकड़ी। वहाँ शुक्ला जी ने राजेंद्र प्रसाद नामक एक वकील के पास गए, जो बाद में कांग्रेस पार्टी के प्रधान और भारत के राष्ट्रपति बने। राजेंद्र प्रसाद शहर में नहीं थे, परंतु नौकर शुक्ला को एक ऐसे गरीब किसान के रूप में जानते थे जो नील की बटाई पर खेती करने वाले किसानों की मदद के लिए उनके मालिक के पीछे लगा रहता था। इसलिए उन्होंने उसे जमीन पर अपने साथी गांधी के साथ ठहरने दिया, जिन्हें उन्होंने कोई अन्य किसान मान लिया था। परंतु परंतु गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि कहीं उनकी बाल्टी से निकली हुई कुछ बूंदें पूरे कुएं को खराब न कर दें। उन्हें कैसे पता होता कि वे अछूत नहीं थे। Gandhi decided to go first to Muzaffarpur, which was en route to Champaran, to obtain more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kriplani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shanti Niketan School. The train arrived at midnight 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Mulkani, a teacher in government school. It was an extraordinary thing in those days. Gandhi committed for a government professor to harbor a man like me. In small localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocate of home rule. स्थिति के बारे में शुक्ला से भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी ने पहले मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया, जो चंपारण के रास्ते में पड़ता था। इसलिए उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्राध्यापक जेबी कृपलानी के पास तार भेजा, जिनको वे टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। गाड़ी 15 अप्रैल 1917 को आधी रात को आई। कृपलानी बहुत से विद्यार्थियों के साथ स्टेशन पर इंतजार कर रहे थे। अब गांधी जी वहां प्राध्यापक मलकानी के घर 2 दिन रुके, जो सरकारी स्कूल में एक अध्यापक थे। गांधी जी ने कहा, एक सरकारी अध्यापक के लिए मेरे जैसे आदमी को पनाह देना उन दिनों में एक असामान्य बात थी। छोटी जगहों में भारतीय लोग होम रूल के समर्थकों के लिए सहानुभूति दिखाने से डरते थे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arrive on foot and by conveyance to see their champion. Muzaffarpur lawyers called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. गांधी जी के आने और उनके आने का अभिप्राय का समाचार जल्दी ही मुजफ्फरपुर और चंपारण में फैल गया। अपने मसीहा को देखने के लिए बटाईदार किसान पैदल और गाड़ियों में चंपारण से आने लगे। मुजफ्फरपुर के वकील गांधी जी को जानकारी देने के लिए उनसे मिलने आए। वे प्राय किसानों के समूहों के मुकदमे कचहरी में लड़ा करते थे। उन्होंने अपने मुकदमों और अपनी फीस की रकम के बारे में बताया।
Gandhi Gandhi chided the lawyers for collecting big fee from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law courts. Taking such cases to the court does little good, where the peasants are so crushed and fear stricken. Law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. बटाईदार किसानों से मोटी फीस लेने के लिए गांधी जी ने वकीलों को डांटा। वे बोले, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें कचहरी जाना बंद कर देना चाहिए। ऐसे मामलों को कचहरी में ले जाने का कोई लाभ नहीं है। जहां किसान इतने दबे हुए और डरे हुए हों, वहां कचहरियां बेकार हैं। उनके लिए वास्तविक राहत तो भय से छुटकारा पाने में है। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. The cheap commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant their 20th or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. This was done by long-term contract. चंपारण जिले की अधिकांश कृषि योग्य भूमि को बड़े बड़े हिस्सों में बांट दिया गया था, जिन पर अंग्रेजों का अधिकार था और भारतीय किसान उन पर मुजाहिरों के रूप में कार्य करते थे। मुख्य व्यापारिक फसल नील थी। जमींदार सभी किसानों को मजबूर करते थे कि वे अपनी जमीन के 1/3 या 15% भाग पर नील की खेती करें और सारी नील की फसल लगान के रूप में दे दें। ऐसा एक लंबे समय के अनुभव द्वारा किया गया। Presently, the landlords learned that Germany had developed synthetic indigo. They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. तभी जमींदारों को पता लगा कि जर्मनी ने कृत्रिम नील पैदा कर लिया है। तब उन्होंने बटाईदारों से ऐसे इकरारनामे कर लिए जिनसे उन्हें 15% के बंधन से मुक्ति देने के लिए जमींदारों को हर्जाना देना था। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged lawyers that landlords hired thugs. Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. फसल बटाई का प्रबंध किसानों को परेशान करता था और बहुतों ने इच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। विरोध करने वालों ने वकीलों का सहारा लिया। जमींदारों ने गुंडों को किराए पर रखा, ठगों को किराए पर रखा। इस बीच कृत्रिम नील का समाचार अनपढ़ किसानों तक पहुंच गया जो हस्ताक्षर कर चुके थे और वे अपने पैसे वापस चाहते थे। नेक्स्ट, Gandhi called on British official commissioner of the Truth Division in which the Champaran district
lay. The Commissioner Gandhi reports proceeded to bully me and advised me forthwith to leave truth. उन्होंने अपना कार्य तथ्यों की जानकारी लेने के प्रयत्न से आरंभ किया। इस समय गांधी जी चंपारण आए। उन्होंने अपना कार्य तथ्यों की जानकारी लेने के प्रयत्न से आरंभ किया। पहले वे ब्रिटिश जमींदार संगठन के सचिव से मिले। सचिव ने उनसे कहा कि वे किसी बाहरी व्यक्ति को कोई सूचना नहीं दे सकते। गांधी जी ने कहा कि वह बाहरी व्यक्ति नहीं है। इसके बाद गांधी जी ने तिरहुत डिवीजन के ब्रिटिश सरकारी कमिश्नर से मिलने गए, जिनके अंतर्गत चंपारण जिला पड़ता था। कमिश्नर ने गांधी जी बताते हैं, मुझे डराना धमकाना आरंभ किया। कमिश्नर ने डराना धमकाना आरंभ किया, गांधी जी बताते हैं, और सलाह दी कि मैं तुरंत तिरहुत से चला जाऊं। कहां से चला जाऊं? तिरहुत से चला जाऊं। Gandhi did not leave. Instead, he proceeded to Motihari, the capital of Champaran. Several lawyers accompanied, accompanied him. At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. He went to a house and, using it as headquarters, continued his investigations. A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. Gandhi decided to go and see. The next morning, he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. Gandhi complied. The messenger drove Gandhi home, where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. Gandhi signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी नहीं गए, इसके बजाय वे चंपारण की राजधानी मोतीहारी की तरफ चल पड़े। कई वकील उनके साथ चले। रेलवे स्टेशन पर एक विशाल जनसमूह ने गांधी जी का स्वागत किया। वे एक घर में गए और उसका उपयोग हेडक्वार्टर के रूप में करते हुए उनकी खोजबीन जारी रखी। एक खबर आई कि पास के गांव में किसान के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। गांधी जी ने जाकर देखने का निश्चय किया। अगले दिन प्रातः वे एक हाथी पर सवार होकर चल पड़े। वे अधिक दूर नहीं गए थे जब पुलिस सुपरिटेंडेंट का एक संदेशवाहक उसके पास पहुंचा और उन्हें आज्ञा दी कि वे उसकी गाड़ी में बैठकर शहर वापस लौटें। गांधी जी ने आज्ञा मान ली। संदेशवाहक गांधी जी को लेकर घर आए, जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने का सरकारी नोटिस दिया। गांधी जी ने नोटिस की रसीद पर हस्ताक्षर किए और इस पर लिखा कि वे आज्ञा का उल्लंघन करेंगे। In consequence, Gandhi received a summons to appear in court the next day. All night Gandhi remained awake. He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with the influential friends. He sent instruction to the ashram. He wired a full report to the viceroy. परिणाम स्वरूप
परिणाम स्वरूप अगले दिन गांधी को कचहरी में उपस्थित होने का कोर्ट का आदेश मिला। गांधी रात भर जगते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को तार किया कि वे बिहार से अपने प्रभावशाली मित्रों को लेकर आएं। उन्होंने आश्रम को हिदायतें भेजी। उन्होंने वायसराय को तार से पूरी रिपोर्ट भेजी। Morning found the town of Motihari back with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that Mahatma, who wanted to help them, was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. सुबह के समय मोतीहारी नगर किसानों से भर चुका था। वे गांधी के दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के बारे में कुछ नहीं जानते थे। उन्होंने सिर्फ इतना सुना था कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना चाहता था, अधिकारियों के कारण मुसीबत में था। हजारों की संख्या में कचहरी के चारों ओर उनका सहज विद्रोह प्रदर्शन अंग्रेजों से उनके भयमुक्त होने की शुरुआत थी। गांधी जी के सहयोग के बिना अफसरों ने अपने आप को कमजोर पाया। भीड़ को नियंत्रित करने में उन्होंने उनकी सहायता की। वे विनम्र और मैत्रीपूर्ण बने रहे। वे उन्हें इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि उनकी शक्ति, जो अभी तक भयपूर्ण और निर्विवाद थी, भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा सकती थी। The government was baffled. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their superiors. सरकार घबराई हुई थी। सरकारी वकील ने जज से मुकदमों को टालने का आग्रह किया। स्पष्ट था कि अधिकारी अपने से बड़े अधिकारियों से सलाह लेना चाहते थे। Gandhi protested against the delay. He read as statement pleading guilty. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. गांधी जी ने देरी के विरुद्ध विद्रोह किया। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक बयान दिया। उन्होंने कचहरी को बताया कि वे कर्तव्यों के संघर्ष में उलझे हुए थे। एक तरफ वे कानून तोड़ने वाला बुरा उदाहरण नहीं बनाना चाहते थे, दूसरी ओर वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने वहां से जाने की आज्ञा का उल्लंघन कानूनी अधिकार के प्रति आदर की कमी के कारण नहीं, बल्कि वे अपने अस्तित्व के उच्चतर कानून आत्मा की आवाज के पालन के कारण किया है। He discarded the order to leave, not for want for respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. He asked the penalty due. उन्होंने कहा कि वे कानून
तोड़ने वाला बुरा उदाहरण नहीं बनाना चाहते थे। दूसरी ओर वह मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे जिसके लिए वे आए थे। उन्होंने वहां से जाने की आज्ञा का उल्लंघन कानूनी अधिकार के प्रति आदर की कमी के कारण नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व के उच्चतर कानून आत्मा की आवाज के पालन के कारण किया है। उन्हें उचित दंड दिए जाने का आग्रह किया। He asked to penalty too. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2 hours recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. When the court recommenced, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जज ने घोषणा की कि वह 2 घंटे के अंतराल के बाद सजा सुनाएगा और गांधी को 120 मिनट की जमानत लेने को कहा। गांधी जी ने इनकार कर दिया। जज ने उन्हें बिना जमानत के ही मुक्त कर दिया। जब अदालत फिर से लगी तब जज ने कहा कि वह कई दिनों तक निर्णय नहीं देगा। इस बीच उसने गांधी जी को मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया।